Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawar. So I welcome you all for the SYBSc Chemistry Paper 3 and lecture of Classical Method of Analysis. So friends, so far now we have discussed about the different type of titrations, that is neutralization titration, redox titration, precipitation titration and complexometric titration. So we have discussed about the various things and various principle involved in this type of titration, and then we have started with the theory of indicators. Okay, so far now we have seen that indicator is very important part of titration and different principles are applied for different type of titration. So the very first one was neutralization titration, or that is also called as acid base titration, where you have to use indicator which is pH sensitive, right? So in this case what happens, whenever you titrate acid and base with each other, there is formation of salt and water. Okay, so during whole titration there is change in pH, that is change in hydrogen ion concentration. Hence whatever indicator you use, it should be pH sensitive, means it should give you color change whenever pH is drastically changed. Okay, so we have seen that phenolphthalein or methyl orange is the indicator which can be used during acid base titrations. Then in our last lecture we have discussed about redox titration, right? So in redox titration you have to titrate the thing where there is change in potential of the system. That means near the equivalence point there is transfer of electron, and that transfer of electron take place in your titrant and titrant, means one species will undergo oxidation and one species will undergo reduction. So your indicator should be also sensitive to electron transfer, means whenever this electron transfer take place, and we all know that it take place whenever your equivalence point is reached, where your reaction is about to complete, that time suddenly electron transfer will take place. And if your indicator is also sensitive to electron transfer, it will also show color change, right? So we have taken the example of iron 2 with potassium dichromate solution, and the indicator used was diphenylamine. Okay, so we have seen that whenever iron 2 is converted into iron 3, okay, there is loss of electron, that electron is taken by dichromate ion, and when the equivalence point is reached, the electron transfer take place and your diphenylamine is also sensitive to that, so it will form diphenylbenzidine violet compound. Okay, so that compound suddenly give you dark blue color. Okay, so you can understand that our reaction is completed and equivalence point is reached. So today we will see the third type, that is precipitation titration. So in precipitation titration we have seen that during the time of equivalence point there is formation of precipitate. Okay, we have seen this in our last lectures, that whenever precipitation type of titrations are performed, what happens, near the equivalence point precipitation take place. Okay, and the indicator used are called as absorption indicator. Okay, now what is the meaning of adsorption indicator? See, adsorption is the process where the surface phenomenon take place. Okay, what is the meaning of surface phenomenon? See, on your desk or your book there is formation of layer of dust. Okay, and that dust is just easily wiped out. आपने अगर कपड़े से पोछा या ऐसे सीधा फूक मारी तो भी क्या होगा, that dust is wiped off, right? So that is called as adsorption phenomenon. Means what? It is only on the surface of a particular molecule or particular compound, right? So ये जो surface phenomenon है, it is not a permanent one. It is a temporary phenomenon and it is not actual chemical change. Okay, absorption is a chemical change, but adsorption is not a chemical change. It is just a surface phenomena. So this type of indicator which act only on surface area is called as adsorption indicator. Means here there will be no actual chemical reaction
take place among your reagents and your indicator. Okay, only surface reaction taken place, and therefore the indicator used in this type of titrations are called as adsorption indicator. So here the method used is called as Fajans method, and the adsorption of a colored organic compound on surface of fresh precipitate introduce electronic shift in the molecule result in change in color. ओके, इतना बड़ा लाइन है, इसका मीनिंग क्या है? वेरी सिंपल, जब आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो ये प्रेसिपिटेट पहले कैसे फॉर्म होता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, सो इन अ प्रेसिपिटेट ऑन अ सिंपल सिंगल मॉलिक्यूल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. तो हम ये कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? देयर इज टू टाइप ऑफ चार्जेस in a particular molecule of a precipitate. One is positively charged ion and one is negatively charged ion. तो ये हमारा जो टाइप है ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है. तो इसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन टेक प्लेस अमंग व्हाट? सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोराइड फ्लोराइड, मतलब जो सारे हैलाइड्स है इनके साथ. ओके, सो हैलाइड्स एंड सिल्वर नाइट्रेट, इनके जो टाइट्रेशन है इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. सो वी विल कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सपोज क्लोराइड आयन, राइट. तो जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगा देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ AgCl आयन, राइट, सिल्वर क्लोराइड आयन. ये प्रेसिपिटेट बनेगा. तो ये प्रेसिपिटेट कैसे बनता है? फर्स्ट देयर विल बी अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन दैट इज Ag+, और उसके ऊपर लेयर बनता जाएगा Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस. ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी लेयर. उसके ऊपर अभी निगेटिवली चार्ज आयन है तो उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन. तो उसके ऊपर Ag+, ऐसा लेयर फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लेयर. ओके, सो प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म होता है? फर्स्ट देयर इज पॉजिटिवली चार्ज आयन, इट कैन बी ऑल्सो निगेटिवली चार्ज आयन. Then there will be a primary layer of oppositely charged particle, then उसके ऊपर उसके oppositely charged particle. ऐसे slowly the size of precipitate molecule will increase. Okay, ये क्या है? It is, you can say, a cloud of positive and negatively charged ions. Okay, so ऐसे precipitate बनता है. और ये precipitate के surface पे अगर indicator का molecule आके बैठ जाए तो क्या होगा? There will be introduction of electronic shift in the molecule, and whenever there is electronic shift there is change in color. That we all know that. In yesterday's lecture also I told you that the color is game of light. When you see any black object, that means all other light it has absorbed, therefore you can see only black color. If you see any object which is white in color, means it has reflected all the light, nothing is absorbed, therefore you can see the white color object. तो इसी तरह आपका जो पार्टिकल है, कौन सा? प्रेसिपिटेट का पार्टिकल, इसके ऊपर अगर इंडिकेटर कोई लेयर बनाता है तो देयर विल बी चेंज इन कलर, एंड दैट टेक्निक इज यूज्ड इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. ओके, सी द नेक्स्ट पॉइंट. दिस फैक्ट इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. Next one, this is mainly applicable to silver salt. Okay, we have already discussed that this type of technique is mostly used in case of silver nitrate. Okay, so silver salt के लिए ये technique use होती है, which is called as Fajans method. See the mechanism, what happens actually during the titration of halide. halide मतलब अभी आप कंसिडर करो Cl माइनस आयन. उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है? देखो, टाइट्रेंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दैट मीन्स यू आर फाइंडिंग आउट अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन. और हम लोगों ने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं रहता और इट इज़ अननोन, it is taken in a conical flask. Please remember, you have taken the solution, pipette out a known volume, and now you have taken that in your conical flask. तो अभी आपके conical flask में क्या है? Cl minus ion, right? And Ag plus ion is titrant, मतलब सिल्वर नाइट्रेट जो होगा, तो
तो सिल्वर नाइट्रेट, इसके वजह से हम लोगों ने क्या लिखा है, ओनली Ag प्लस आयन, राइट, इट इज़ पार्ट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, राइट। तो ये हम कहाँ पे फिलअप करेंगे, वी विल फिल इट इन योर ब्यूरेट। सो ब्यूरेट सॉल्यूशन इज टाइट्रेंट एंड कोनिकल फ्लास्क और पिपेट सॉल्यूशन इज टाइट्रेंट, राइट। तो देखो अभी क्या होने वाला है, आपके कोनिकल फ्लास्क में क्या है, देयर इज क्लोराइड आयंस, राइट, और आपके ब्यूरेट में क्या है, Ag प्लस आयन, एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फ्रॉम योर ब्यूरेट, ओके। तो आप पहले बताओ कि आपके कोनिकल फ्लास्क में अभी एक्सेस क्या है, Cl माइनस आयन, राइट। आपके कोनिकल फ्लास्क में एक्सेस में क्या है, Cl माइनस आयन, ज़्यादा है ना वो वहाँ पे, और आप स्लोली उसमें क्या ऐड कर रहे हो, सिल्वर सॉल्यूशन फ्रॉम योर ब्यूरेट, ओके। सो सी द नेक्स्ट लाइन, इनिशियली द कोलाइडल पार्टिकल ऑफ फ्रेश प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इज निगेटिवली चार्ज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। ये एक डायग्राम बनाया हुआ है, हाँ, ये डायग्राम कहाँ का है, इन योर कोनिकल फ्लास्क। आप कंसिडर करो कि आप टाइट्रेशन कर रहे हो, इन योर ब्यूरेट देर इज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, Ag प्लस आयन्स आर इन ब्यूरेट, एंड इन योर कोनिकल फ्लास्क देर आर Cl माइनस आयन। ये अकेले नहीं होंगे, HCl ऐसे कुछ तो होगा, राइट। तो आपके कोनिकल फ्लास्क में क्या है, Cl माइनस आयन। तो ये जो डायग्राम बनी है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ योर कोनिकल फ्लास्क। तो जैसे ही आप ब्यूरेट से सिल्वर सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप कोनिकल फ्लास्क में ऐड करते हो, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इन योर कोनिकल फ्लास्क, राइट। लेकिन ये जो AgCl का एक मॉलिक्यूल है, देखो इट इज़ शोन विद ब्लैक कलर, उसके सराउंडिंग सारे कौन से आयंस रहेंगे, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, क्योंकि आपके कोनिकल फ्लास्क में क्या है, Cl माइनस आयन, राइट। तो आपका जो AgCl है इट विल बी सराउंडेड बाय Cl माइनस आयन। सी हियर इन द राइट साइड आई हैव रिटन एक्सेस ऑफ Cl माइनस आयन, क्योंकि अभी इनिशियली स्टार्टिंग में व्हेन यू स्टार्ट द रिएक्शन आपके कोनिकल फ्लास्क में Cl माइनस आयंस आर इन एक्सेस, राइट। सो हियर देर इज प्राइमरी लेयर ऑफ Cl माइनस आयन। मैंने अभी अभी बोला था कि AgCl का एक मॉलिक्यूल बन गया और उसके ऊपर प्राइमरी लेयर अभी किसका है, Cl माइनस, राइट। तो ये रिएक्शन होता जाएगा, द रिएक्शन विल बी इन प्रोग्रेस टिल यू ऐड Ag प्लस फ्रॉम योर ब्यूरेट। आप क्या कर रहे हो, ड्रॉप वाइज Ag प्लस सोल्यूशन ब्यूरेट से ऐड कर रहे हो। सो योर रिएक्शन इज गोइंग ऑन एंड नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर एंड पॉइंट। ऐसे तो कोई टाइम आएगा जहाँ पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ऑल योर Cl माइनस इज नाउ रिएक्टेड विद Ag, और पूरा जो Cl है वो अभी क्या बन गया, AgCl। मतलब अभी आपके कोनिकल फ्लास्क में कोई Cl नहीं बचेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसे एसिड बेस में एसिड जो था कोनिकल फ्लास्क का, इट इज़ यूटिलाइज विथ बेस। सिमिलरली हियर इन कोनिकल फ्लास्क Cl माइनस आयन है, जैसे HCl हो सकता है, KCl हो सकता है, राइट। सो दैट इज नाउ न्यूट्रलाइज, यू कैन से इट इज़ रिएक्टेड विथ Ag आयन्स फ्रॉम योर ब्यूरेट, और सारे Cl माइनस आयन अभी यूज़ हो गए, उनका क्या बन गया, AgCl का प्रेसिपिटेट। सो आफ्टर एंड पॉइंट एक्सेस ऑफ Ag प्लस आयन फ्रॉम ब्यूरेट will displace Cl minus ion from primary layer, and now the precipitate of AgCl becomes positively charged. आप इसका मीनिंग समझो, इनिशियली शुरू में क्या था, AgCl is surrounded with Cl minus ion, क्योंकि अभी आपके कोनिकल फ्लास्क में Cl माइनस आयन थे, राइट। लेकिन आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, सारे Cl माइनस आयन तो ख़त्म हो गए बिकॉज यू आर एडिंग Ag प्लस फ्रॉम योर ब्यूरेट। सो अभी आपका जो AgCl होगा उसका जो प्राइमरी लेयर है ऊपर का Cl माइनस, इट इज़ नाउ डिस्प्लेस विथ Ag प्लस आयन, और शुरू में जो प्रेसिपिटेट निगेटिवली चार्ज थी वो अभी पॉजिटिवली चार्ज बनेगी। देखो कैसे, सी हियर द नेक्स्ट डायग्राम। अभी AgCl वैसे ही है, आई हैव जस्ट शोन यू वन मॉलिक्यूल। ऐसे आपका कोनिकल फ्लास्क में जितना भी Cl है वो पूरा अभी क्या बन गया है, AgCl, बिकॉज यू हैव एडेड Ag फ्रॉम योर ब्यूरेट।
और अभी क्या हो गया, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट देर विल बी नो Cl and you are keep on adding Ag from your burette. तो AgCl molecule now surrounded with Ag plus, Ag plus, Ag plus, Ag plus, because see the right side, there is excess of Ag plus ions, right? Are you getting my point? Means after the equivalence point, पहले आपका जो precipitate जो negatively charged था, okay, see here I will just show you once more time. Here जो आपका प्रेसिपिटेट शुरू में निगेटिवली चार्ज था, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट इट विल बिकम नाउ पॉजिटिवली चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज क्यों बनेगा? बिकॉज Cl माइनस आयन खत्म हो गए एंड योर AgCl मॉलिक्यूल इज नाउ सराउंडेड विथ Ag प्लस आयन्स. ओके, इतना समझ में आया आपको? नाउ सी हियर द रोल ऑफ इंडिकेटर कम्स. नाउ सपोज व्हेन यू ऐड इंडिकेटर लाइक फ्लूरोसिन. ओके, यहाँ पे हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं? फ्लूरोसिन. इफ़ इट इज़ एडेड ड्यूरिंग योर टाइट्रेशन, जैसे आप एसिड बेस टाइट्रेशन में फिनोफ्थैलिन ऐड करते हो या मिथाइल ऑरेंज ऐड करते हो, उसी तरह हियर यू आर एडिंग फ्लूरोसिन इंडिकेटर. इफ़ इट इज़ एडेड ड्यूरिंग योर टाइट्रेशन विच इज़ वीक ऑर्गेनिक एसिड. ये फ्लूरोसिन क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट अ वीक ऑर्गेनिक एसिड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड. ओके, HF विच फॉर्म्स, वो क्या बनाता है देखो, विथ योर प्रेसिपिटेट AgCl डॉट Ag प्लस. क्योंकि देखो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा Ag जो है वो पूरा किससे सराउंडेड है? इट इज़ सराउंडेड बाय Ag प्लस, राइट. और अभी Ag प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा? किसी तो भी निगेटिव मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा. लेकिन Cl तो सारे ख़त्म हो गए. तो इन दिस केस सपोज यू हैव एडेड इंडिकेटर HF, तो HF में क्या होगा? H विल बी प्लस पॉजिटिवली चार्ज एंड F विल बी निगेटिवली चार्ज. फ्लोराइड आयन विल बी निगेटिवली चार्ज. तो अभी ये जो Ag प्लस जो प्राइमरी लेयर है, इट विल अट्रैक्ट द F माइनस आयन टूवर्ड इटसेल्फ. AgCl डॉट Ag प्लस F माइनस, देखो पिंक कलर में लिखा हुआ है. तो ये एक एग्रीगेट बनेगा विच इज़ पिंक इन कलर. सी, ये जो कंपाउंड बनता है वो कैसा है? इट इज़ पिंक इन कलर एंड दिस इंडिकेट्स यू एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन. अभी मैंने पहले ही बताया था कि दिस इज़ अ सरफेस टाइप ऑफ रिएक्शन. तो हम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? वाई इट इज़ सरफेस टाइप ऑफ रिएक्शन? बिकॉज इनसाइड एक्चुअली देर इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ AgCl, राइट. और ये जो AgCl का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर, उसके सरफेस पर कौन है? Ag प्लस, Ag प्लस, Ag प्लस. सी द डायग्राम, राइट. और ये जो F माइनस है, इट इज़ जस्ट कंबाइन विद द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ Ag प्लस. उसने अंदर के AgCl को अफेक्ट किया? नहीं. इट हैज़ नॉट टेकन एनी रिएक्शन विथ AgCl. कोई पार्ट नहीं है उसका. ये किसके साथ जस्ट कंबाइन हो रहा है? किसके साथ सरफेस रिएक्शन कर रहा है? ओनली विथ Ag प्लस, राइट. तो AgCl जो है इनसाइड, सी द ब्लैक वन, वो वैसे का वैसा रहेगा. ओके, ओनली देयर विल बी रिएक्शन ऑफ AgCl. आउटर में कौन है? Ag प्लस. और उसके बाहर अभी Ag प्लस किसको अट्रैक्ट कर रहा है? F माइनस को. ये F माइनस कहाँ से आया? वॉट एवर इंडिकेटर यू हैव एडेड, दैट इज HF, राइट. तो ये क्या है? इट इज़ अ सरफेस रिएक्शन एंड वेन एवर दिस टाइप ऑफ एग्रीगेट इज फॉर्म, सी द पिंक कलर एग्रीगेट AgCl डॉट Ag प्लस F माइनस. ये एग्रीगेट इट इज़ पिंक इन कलर. So here there will be formation of color and you will understand that your reaction is completed because तुम्हारा कलर चेंज हो गया, पिंक हो गया and then you will come to know that this is the end point of the reaction. So this way there is no chemical interaction, okay, no electron transfer. This is third type of phenomenon which is only adsorption type of phenomenon. तो ये किस में यूज़ हो रही है? इन योर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. ओके, सो आप लोगों को पता चल गया कि जो 3 मेथड हम लोगों ने डिस्कस की, एसिड बेस में pH सेंसिटिव, रेडॉक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेंसिटिव एंड हियर ओनली एडसॉर्प्शन टाइप ऑफ फिनोमेनन. So this type of thing is used in precipitation titration. Now see the last point. If you use Mohr's method, here potassium chromate itself act as indicator. So potassium chromate भी color होता है. So here you don't have to add any indicator, it will directly act as indicator. Okay.
So I hope you have understood the three type of indicators which are used in neutralization titration, redox titration and precipitation titration. So in our next lecture we will discuss about the indicators used in complexometric titration. Till then, take care and stay safe. Thank you.